Today our topic is production of elliptically, circularly and linearly polarized light. ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲਿਪਟਿਕਲੀ ਸਰਕੂਲਰਲੀ ਐਂਡ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਫੋਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫੋਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਟਰ ਵੇਵ ਪਲੇਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਟਰ ਵੇਵ ਪਲੇਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਰਕੂਲਰਲੀ, ਐਲਿਪਟਿਕਲੀ ਔਰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਕੋਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੋਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਟਰ ਵੇਵ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਟਰ ਵੇਵ ਪਲੇਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰਲੀ, ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਔਰ ਐਲਿਪਟਿਕਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਟਰ ਵੇਵ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਟਰ ਵੇਵ ਪਲੇਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਆਟਰ ਵੇਵ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਹੈ ਨਾ 2 ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓ ਰੇ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈ ਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਟਰ ਵੇਵ ਪਲੇਟ ਆਪਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਓ ਰੇ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਈ ਰੇ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਵੇਵ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਵੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੁਆਟਰ ਵੇਵ ਪਲੇਟ ਦੀ। ਕੁਆਟਰ ਵੇਵ ਪਲੇਟ ਕੀ ਡਬਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆਪਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓ ਰੇ ਅਤੇ ਈ ਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓ ਰੇ ਅਤੇ ਈ ਰੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਟਰ ਵੇਵ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਫੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਂਸ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਟਿਕ ਐਕਸਿਸ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਆਟਰ ਵੇਵ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ 2 ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓ ਰੇ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ ਈ ਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ 2 ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈ ਰੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਬੀ ਦੀ ਓ ਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਈ ਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਓ ਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਪੀ ਕਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਟਰ ਵੇਵ ਪਲੇਟ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਆਟਰ ਵੇਵ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰੀ 2 ਰੇਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਓ ਰੇ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਈ ਰੇ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਟਰ ਵੇਵ ਪਲੇਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਥ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈ ਰੇ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਓ ਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਈ ਰੇ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਫਾਸਟਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਟੂ ਓ ਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਥ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਾਥ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਅਗਰ ਪਾਥ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਓ ਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਈ ਰੇ ਹੈ ਇਸ ਕੁਆਟਰ ਵੇਵ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਮਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਲਾਈਟ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੇਵ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੇਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕੂਲਰਲੀ, ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲਿਪਟਿਕਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਟਰ ਵੇਵ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ
एक कंडीशन ये याद रखनी है भी जो क्वार्टर वेव प्लेट से आप हमेशा ना पोलराइज लाइट में ही इंसीडेंट करवाना है। इन्होंने क्या जो हम आप चैक करना है भी जो अपने को जी इमरजेंट लाइट सुपर इंपोज करके आई है वो कि लाइट है, सर्कुलरली है, लीनियरली है या फिर एलिप्टिकली पोलराइज लाइट है, वो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन की है। हम आप अपन की पता होना चाहिए इन्होंने दोवों के एंगल की है, पता होना चाहिए भी इन्होंने दोवों के जो फेज का डिफरेंस की है। उन्होंने क्या हम लैट कर लो, लैट दी डेल्टा बी फेज, इन्होंने क्या डेल्टा की अपने को फेज डिफरेंस है बिटवीन ओ रे एंड ई रे। इन्होंने डेल्टा के अपने को फेज डिफरेंस है ओ रे ते ई रे दे विच, ठीक है। इन्होंने क्या हुण आपां की करांगे इक्वेशन लिखांगे फॉर ओ रे लई इक्वेशन लिखांगे। इन्होंने क्या हुण आप जो क्या कोई भी लाइट इंसीडेंट करती है पोलराइज लाइट इंसीडेंट करती है किसी भी क्वार्टर वेव प्लेट से, इट मीनस वो एंपलीट्यूड भी तो डिवाइड होएगा, वो एंपलीट्यूड की है दो कंपोनेंट्स के डिवाइड हो जाएगा, एक अपने को ए कोस थीटा तो दूजा की हो जाएगा ए साइन थीटा। सिंस इन्होंने क्या ए कोस थीटा जिस एक्सिस दे नाल थीटा एंगल बनया होवे उस वो कंपोनेंट किहड़ा हुंदा ए कोस थीटा, इट मीनस ई कोस थीटा कोले किहड़ा कंपोनेंट बन गया ई कोस थीटा एंड ओ कंपोनेंट ओ रे दे कोले किहड़ा बन गया कंपोनेंट ए कोस थीटा ए साइन थीटा, ठीक है। हुण आप इक्वेशन लिखनी है ओ रे दी। इन्होंने के सेंस जी ओ रे दी जी डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस हो रही है, इस करके वाई इज इक्वल्स टू वाई की अपने को डिस्प्लेसमेंट है। इन्होंने क्या है वाई इज इक्वल्स टू वाई अपने को आ गया। हुण इहदा एंपलीट्यूड की है ए है ना ए साइन थीटा साइन ओमेगा टी। अपने इक्वेशन अपने वेव की इक्वेशन पढ़िया होया ना वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, जिथे अपने को ए की होंगे एंपलीट्यूड वाई की होंगे डिस्प्लेसमेंट ओमेगा की होंगे अपने को फ्रिक्वेंसी तो टी की होंगे टाइम पीरियड। उस वेव में आप कर यूज़ कर एक नवी इक्वेशन फॉर्म करिए किसकी ओ रे की। इतने अपने को वाई की डिस्प्लेसमेंट है ए साइन थीटा की एंपलीट्यूड है ओ रे का एंड ओमेगा टी अपने को की फेज है, ठीक है। हुण सिमिलरली आप लिखांगे इक्वेशन फॉर ई रे, ई रे दे इक्वेशन लिखांगे सिंस जी ई रे की डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस है तो एक्स इज इक्वल्स टू यदा जो एंपलीट्यूड है ए कोस थीटा अपने को साइन अपने को फेज का डिफरेंस कितना आ रहा है डेल्टा, ठीक है। हुण आप सिंस आपको पता जो इमरजेंट रेज दोनों आपस में क्वार्टर वेव प्लेट के बाहर निकलती हैं तो की सुपर इंपोज करती हैं, सुपर इंपोज करके एक रिजल्टेंट वेव दिंदियां ने। हुण आप क्या करेंगे इन्होंने दोनों इक्वेशनस यूज़ करके एक रिजल्टेंट इक्वेशन बनावांगे जी आपको रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन दसेगी, ठीक है। हुण आप इक्वेशन सोल्व करने लिए की करांगे लैट कर लो भी जो ए साइन थीटा आप बी लैट कर लो ए कोस थीटा ए लैट कर लो तो अपने को इक्वेशनस की बन गई वाई इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा और वाई इज इक्वल्स टू बी साइन ओमेगा टी एंड एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इस इक्वेशन में फर्स्ट नाम दे लिया, इस इक्वेशन में की है सेकंड नाम दे लिया। हुण आप दोवें इक्वेशनस नूं की करांगे सोल्व करांगे। आप फर्स्ट इक्वेशन दे विच की करांगे साइन ओमेगा टी की वैल्यू नूं फाइंड करांगे। साइन ओमेगा टी की वैल्यू की आ जाएगी वाई बाई बी इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। हुण आपां नूं पता है कोस स्केयर ओमेगा टी प्लस साइन स्केयर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 हुंदा ना। हुण आपां की करांगे कोस स्केयर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू अपने को 1 स्केयर ओमेगा 1 साइन ओमेगा टी आ गया तो कोस ओमेगा टी की वैल्यू अपने को रूट 1 माइनस साइन स्केयर ओमेगा टी आ गई कोस ओमेगा टी। हुण आपां पता है साइन ओमेगा टी की वैल्यू की है वाई बाई बी, इत्थे की करांगे पुट कर देंगे तो अपने को आएगा वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर। हुण अपने को साइन ओमेगा टी की वैल्यू भी आ गई कोस ओमेगा टी की वैल्यू भी आ गई। इन्हां दोवें इक्वेशनस नूं की करांगे सेकंड इक्वेशन दे विच पुट कर देंगे। पहला की करांगे आपां सैकंड इक्वेशन नूं की करांगे एक्सपेंड करांगे। साइन आपां नूं पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला की हुंदा है साइन ओमेगा टी कोस डेल्टा प्लस कोस ओमेगा टी साइन डेल्टा। हुण अपने को साइन ओमेगा टी की वैल्यू भी पई है कोस ओमेगा टी की वैल्यू भी पई है, इत्थे आपां की कर देंगे पुट कर देंगे तो अपने को एक्स आ गया ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू वाई बाई बी है कोस डेल्टा एज इट इज प्लस
cos ओमेगा टी की अपने को वैल्यू 1 माइनस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर साइन डेल्टा है। ठीक है, हम आप सिंपली जस्ट सिंपलीफाई करें इक्वेशन तो अपने को इक्वेशन बनेगी जेड़ा ए इधर मल्टीप्लाई चौधरी की हो गया डिवाइड हो गया तो अपने को वाई बाई बी कोस डेल्टा प्लस रूट 1 माइनस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर साइन डेल्टा। हम की करेंगे वाई बाई बी कोस डेल्टा नू इधर की करेंगे माइनस से लियावांगे तो अपने को एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी कोस डेल्टा इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर साइन डेल्टा। हम की करें स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स की करेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स तो अपने सिंपली की करा स्केयरिंग करी एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी दी होल स्केयरिंग करनी है इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर साइन डेल्टा दी होल स्केयर करनी है तो इतने आप उरे आप सॉरी अपने को क्या आएगा कोस डेल्टा तो इतने आप सोल्व करें सिंपली कोस स्केयर एक्स स्केयर अपॉन एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर कोस स्केयर डेल्टा माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस डेल्टा आ गया। अगर इधर आप सोल्व करें तो अपने को की बनेगा 1 माइनस एक्स वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर साइन स्केयर डेल्टा। ठीक है, हम आप करेंगे सिंपली सोल्व करते पे एक्स स्केयर अपॉन वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर कोस स्केयर डेल्टा माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस डेल्टा इज इक्वल्स टू अपने को लेके आएगा साइन स्केयर डेल्टा में सिंपली ब्रैकेट में की करें सोल्व करें माइनस साइन स्केयर डेल्टा वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर। हूँ इतने कि अपने को वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर तो वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर के कॉमन है इस स्टेटमेंट को इधर लेके आवांगे तो अपने को एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर कोस स्केयर डेल्टा प्लस साइन स्केयर डेल्टा वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस डेल्टा इज इक्वल्स टू साइन स्केयर डेल्टा। ये वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर की है कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लाँगे अंदर की बच गया कोस स्केयर डेल्टा प्लस साइन स्केयर डेल्टा इज इक्वल्स टू साइन स्केयर डेल्टा आ गया। ठीक है, इन्होंने क्या हम कोस स्केयर डेल्टा प्लस साइन स्केयर डेल्टा के नाम का 1 होंगे अपन पता है तो एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर इतने की बच गया सिर्फ वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर ही बचे माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस डेल्टा इज इक्वल्स टू साइन स्केयर डेल्टा। हम जी इक्वेशन अपने को बनी है ना एक रिजल्टेंट इक्वेशन है एक अपने को क्या जर्नल इक्वेशन है। इन्होंने क्या हम आप करेंगे ये स्पैशल केसिस करेंगे जिदा आप क्या डेल्टा की वैल्यू सॉरी डेल्टा की वैल्यू की करेंगे चेंज करते जावांगे तो अपने को की है एक न्यू न्यू इक्वेशनस क्या बनदियाँ जाएगी तो अपने को रिजल्टेंट जी इमरजेंट रे बनती रहेगी अपन दसेगी वो कि बन रही है एलिप्टिकल बन रही है कि अपने को सर्कुलर बनती पई है। हम आप करेंगे केस फस्ट जो आप डेल्टा की वैल्यू क्या 0 रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर डेल्टा की वैल्यू 0 रखांगे तो आधा डिफरेंस कि आ जाएगा 2 पाई या फिर 2n पाई आ जाएगा इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा n का। ठीक है, तो अपने को आ जाएगा एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस 2xy अपॉन ए बी। हूँ आप पता है कोस 0 कितना होंगे 1 इज इक्वल्स टू साइन 0 कितना होंगे 0 तो अपने को एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस 2xy अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 0 आ गया। इन आप होर सिंपलीफाई भी कर सकते हैं एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी का होल स्केयर लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 0। इतों अपने को एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई अपॉन बी आ गया। इतों अगर आप वाई की वैल्यू कढ़ीए अगर इतों आप करिए वाई की वैल्यू कढ़ीए तो अपने को वाई की वैल्यू की आए जी बी एक्स अपॉन ए। इन्होंने जी अपने को इक्वेशन आई है ना एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है
अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो अपन पता किमें लगो भी ये स्ट्रेट लाइन दी है। अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करिए y = mx+c देना तो अपन पता लगेगा भी जी इक्वेशन है वो की है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इन्होंने सेंस अपन पता लग गया जी लाइन है स्ट्रेट लाइन है, इस करके अपन पता जी लाइट है इमरजेंट रे है जी सुपरइम्पोज करके आई है वो की होगी एक लीनियरली पोलराइज लाइट होएगी। की होएगी लीनियरली पोलराइज लाइट। तो आप सिंपली कह सकते हैं आगे अपने को कोई भी क्वार्टर वेव प्लेट है इन्होंने आप ओरिजिन मनने यही की एक्स एक्सिस है, दिस वन भी दी वाई एक्सिस है। इन्होंने क्या यही आप वाइब्रेशन मनने से इंसीडेंट रे का पी क्यू। इन्होंने क्या जी हम अपने को इमरजेंट रे आई है ना सुपरइम्पोज करके वो की होएगी इंसीडेंट रे दे ही पैरेलल होएगी, मीनस इस डायरेक्शन दे विच ही वो प्रोपागेट करेगी। इट मीनस जी अपने को रिजल्टेंट लाइट इज पैरेलल टू इंसीडेंट लाइट दे की होएगी पैरेलल होएगी। तो अपने को जी स्टेट ऑफ पोलराइजेशन आई है लीनियरली पोलराइजेशन आई है, लीनियर पोलराइजेशन आई है। ठीक है हुण अपने को आंदा केस सैकेंड जो आप डेल्टा की वैल्यू नूं की रखांगे पाई रखांगे मतलब 180 डिग्री। ठीक है हुण आप डेल्टा की वैल्यू उस इक्वेशन की करांगे जनरल इक्वेशन पुट करांगे तो एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस 2xy आ देख हुण अपन ए बी एज इट इज। हुण अपन पता कोस 180 कितना हुंदा या फिर कोस पाई कितना हुंदा -1 तो माइनस माइनस की हो गया प्लस हो गया इज इक्वल्स टू एंड साइन 180 कितना हुंदा 0 आ गया। ठीक है हुण इहनूं आपां जस्ट की करें सिंपलीफाई करें तो अपने को एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी द होल स्केयर लिख सकते हैं। तो अपने को एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन बी आ गया। इतों आप की करांगे वाई की वैल्यू कढ़ांगे की आ जाएगी माइनस बी एक्स अपॉन। हुण जी यही इक्वेशन आई है ये भी की है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बट ये डिफरेंस की है ये साइन ऑफ नैगेटिव है। इट मीनस जी रिजल्टेंट जी अपने को लाइट बनेगी ना वो परपेंडिकुलर होएगी टू द इंसीडेंट लाइट। इन्होंने क्या इस डायरेक्शन की होएगी प्रोपागेट होएगी। ये अपने को की है अपने को रिजल्टेंट है ये की अपने को इंसीडेंट लाइट है। सिंस ये की है एक्स एक्सिस नाल थीटा एंगल बना रही सी ये की है ए भी एंगल थीटा बनाएगी। इन्होंने क्या टोटल एंगल कितना हो गया 2 थीटा हो गया। ये की अपने को इंसीडेंट लाइट है ये अपने को रिजल्टेंट है। इट मीनस रिजल्टेंट एंड इंसीडेंट लाइट के एंगल कितना बनेगा 2 थीटा बनेगा। इत्थे भी अपने को जी लाइट आई है वो की आई है लीनियरली पोलराइज्ड आई है। ठीक हुण अपने को आ गया केस थर्ड इन्होंने जो डेल्टा की वैल्यू आप रखते हैं π/2 रखते हैं और 90 डिग्री। हुण आप डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री इस इक्वेशन की करांगे पुट करांगे तो अपने को आएगा एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर। हाँ देखो कोस 90 कितना हुंदा 0 हुंदा तो यह टर्म की होगी अपने को इत्थे अपने को क्या आएगा कोस 90 साइन 90 कितना हुंदा अपने को 1 हुंदा तो साइन स्केयर 90 यह टर्म की होगी 0 हो जाएगी तो एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर ये टर्म की होगी 0 होगी एंड दिस वन बिकम्स 1। तो ये जी इक्वेशन आई है ये कि अपने को की है एलिप्स की इक्वेशन है ये कि अपने को एलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है इट मीनस जी रिजल्टेंट बनेगी वो कि स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होएगी वो एलिप्स होएगी जिसका जो मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस के पैरेलल होएगा ये अपने को की है मेजर एक्सिस है एंड ये अपने को है माइनर एक्सिस है जो वाई एक्सिस की होएगा पैरेलल होएगा। तो जी अपने को पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द क्वार्टर वेव प्लेट मिलेगी वो की होएगी एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट होएगी। ठीक है हुण इस दे विच अपने को एक होर स्पैशल केस आंदा है जो की हो जाएगी जो अपने को एंपलीट्यूड की है दोनों ओरे दा ते ईरे दा दोवां दा एंपलीट्यूड की है जी अपने को इक्वल हो जाए मीनस ए इज इक्वल्स टू बी हो जाए। तो अपने को आप अगर ए इज इक्वल्स टू बी इस इक्वेशन पुट करांगे तो अपने को इक्वेशन की बनेगी एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਏ ਸਕੇਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਏ ਸਕੇਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੌਰੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਰਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਫੋਰਮਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਲ ਦੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਬਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕੂਲਰਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਬਣੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।